It's not at all blending. Not Sua Beauty. Why I'm saying Sua Beauty? Now maybe if that is my shade or not. Hi guys, welcome back to Beauty Reviews with Monica. आज का जो वीडियो है वो कंसीलर्स के बारे में है. I know you guys love my concealer reviews with swatches and application and all because Swiss Beauty concealers, Maybelline Age Rewind, Maybelline Fit Me, ऐसे बहुत सारे concealers के मैंने proper reviews किए जो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं. So I'm here with these ELF concealers. वैसे 7 शेड्स हैं मेरे पास जिनके swatches, application, demo, you know, try on सब होगा इस वीडियो में in detail. So let's start. Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. So as you can see this side, the first shade is very light, so I can use it for highlighting, or you also can use it for highlighting. So if you want lightest shade, you can go for light beige. And then the next one is medium warm. So those who don't have any like pigmentation or dark circles but still they want a warmer shade, then they can go for the second shade, which is medium warm. Now the third shade is medium neutral, which I feel has a pink undertone, so I think it will not suit anyone, like at least for the Indian, you know, skin tone, which has like a warmer skin tone. That's medium sand, which you can use if you are looking for a neutral medium shade. Okay, so for me like I can pick up yellow shade and I can pick up medium beige and the last one, but this one brown shade again is not useful for me. So 3 shades are something which are really useful with our yellow undertones for all of us, plus the light beige, which is the highlighting shades. If you notice here, ये जो concealers है ये darker set हो जाते हैं. If you see, they have turned darker, and which is what the website even says, that it dries darker than you apply freshly, and then it sets into matte finish. Let's try it on. मैं लगाने वाली हूँ medium warm this side and medium beige this side on my dark circles. तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये दोनों शेड्स आपके लिए चलेंगे कि नहीं, और मुझे भी पता चल जाएगा because I'm also testing out for the first time. So let's see. थोड़ा सा लगाऊंगी एंड इमीडिएटली ब्लेंड करूंगी बिकॉज मैंने पढ़ा है इनके साइड पे कि ये जल्दी से सेटल हो जाता है. सो ये लगा के इधर लगा के मैं ऐसे नहीं करूंगी, पहले एक ही जगह लगाती हूँ फिर ब्लेंड करती हूँ. Now tell me one thing, do you think this shade suits me? No, right? Because you can see that it looks something different. Like जैसे ही आप कोई concealer लगाओ and
आपको अगर लग रहा है कि कुछ लगाया है, दैट मीन्स दैट कंसीलर इज़ नॉट सूटिंग यू। कंसीलर लगाने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि कुछ नहीं लगाया है, बस डार्क सर्कल्स चले गए हैं। तो वैसे तो नहीं लग रहा है, और एशीनेस दिख रहा है यहाँ पे, मेरा जो घेर है वो भी दिख रहा है। सो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट माई शेड। सो लेट मी ट्राई मीडियम बेज दिस साइड एंड सी इफ दैट इज़ माई शेड और नॉट। Even this is not like directly my shade, I cannot like directly pick up medium beige and go for this. दोनों को थोड़ा सा build up करके देखती हूँ. Sometimes if you apply double layer of the concealer it can work. So let's see. ना ना बेबी, ये तुम्हारा शेड नहीं है. This shade, which is medium warm, has like a brightening effect. As you can see, it has brightened up my this area, whereas medium beige, I don't know, somehow I felt like medium beige मेरा शेड होता. मतलब अगर मुझे एक ही शेड पिक करना होता तो मैं तो medium beige के लिए ही सोच रही थी. So this is how it looks. I have applied the third coat of medium beige. I don't know on camera, but मैं तो rely कर रही हूँ on the mirror. जो एकदम close mirror में एकदम close जाके अगर देखूँ तो मुझे medium beige अभी भी इतना suitable नहीं लग रहा है. And this is okay, but this I cannot use it alone. I have to use orange corrector or something and then use medium warm, so which might work better. So that we will see. If I have time I will show you that, but let's move on to the next shade. Hello. So मैंने हटा दिया है पहले का कंसीलर. बहुत हॉरेबल लग रहा था. अगर कंसीलर सूटेबल नहीं है तो बहुत अजीब सी आंखें दिखती है, लगता है कि सूजी हुई है. So let's try the third and last shade from these like elf concealers, जो मुझे लगता है कि डार्क सर्कल्स पे मेरे काम करेगा. वैसे पहले दो शेड्स से मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ क्योंकि मीडियम बेज एंड मीडियम वार्म थोड़ा भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा था. ऑफ कोर्स मुझे ऑरेंज करेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, बट जैसे Maybelline एज रिवाइन में कैरमल शेड था, या फिर सुआ ब्यूटी, नॉट सुआ ब्यूटी, वाई हम से सुआ ब्यूटी, स्विस ब्यूटी में एक शेड है जो बहुत ऑरेंज टोन है. आई थिंक दैट्स 01 और समथिंग. तो वैसे इसमें कोई शेड नहीं दिखा. इवन आई हैव चेक्ड ऑल द डार्कर शेड्स, बट उसमें ऑरेंज अंडरटोन वाला मुझे नहीं दिखा. सो दिस इज़ द लास्ट वन एंड आई होप दैट दिस सूट्स मी. लेट्स सी. I think it's going slightly with my dark circles. At least grey turn नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो घेरा है वो अभी दिख रहा है, but I feel one more layer I will add up and then let's see. हाँ, थैंकफुली एटलीस्ट एल्फ ने मुझे एक शेड तो दिया जो मुझे सूट करे. तो मैं क्या करती हूँ ना, टू गेट दैट 100% सेटिस्फैक्शन, मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर लगाती हूँ एंड देन ये वाला शेड जो टैन सैंड है वो लगा के देखती हूँ, सो दैट कम्प्लीटली मेरे डार्क सर्कल्स जो है ना वो अच्छे से कवर हो जाए. एंड आपको भी पता चलेगा कि अगर ऑरेंज करेक्टर है एंड टैन सैंड शेड है तो कैसे लगेंगे ऐसे डार्क सर्कल्स. वैसे मीडियम बेज एंड मीडियम वार्म पे मैं बिल्कुल अभी जाऊंगी नहीं, इवन विथ ऑरेंज करेक्टर, बिकॉज आई फील वो थोड़े से थे वाइटिश दिख रहे थे, तो ग्रेइश टर्न होने के चांस ज़्यादा लग रहे थे, इवन दो उसमें येलो अंडरटोन था. तो वो थोड़े से लाइट शेड्स है जो मेरे लिए नहीं होंगे. मे बी आई कैन यूज़ देम टू कवर अप माई दिस काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, जैसे पिम्पल्स है या कुछ भी. बट डार्क सर्कल्स पे ये टैन सैंड शेड ही मेरे लिए जाएगा. सो लेट्स अप्लाई ऑरेंज करेक्टर. फॉर दिस आई विल अप्लाई फ्रॉम नायका पैलेट. जो यहाँ पे आप ऑरेंज करेक्टर देख रहे हो ये वाला बहुत थोड़ा सा लगाऊंगी. So tell me one thing, which side looks better? What do you feel? Tell me in the comment section. Okay. Okay. So ये जो रेड दिख रहा है आपको वो एक्चुअल एक्ने है, और ये जो थोड़ा सा डार्क कलर वाला दिख रहा है वो एक्ने मार्क्स है, जो अभी 2-3 वीक्स पहले मतलब आया हुआ था, और अब वो डार्क है, धीरे धीरे वो फेड हो जाएगा. सो दीज आर द मार्क्स विच आई एम गोना ट्राई कवरिंग विद दिस.
आई डोंट नो इफ दिस कंसीलर इज़ रियली फुल कवरेज, क्योंकि फुल कवरेज बॉक्स पे लिखा है, बट मुझे क्यों फुल कवरेज नहीं मिल रहा पता नहीं। फिर भी मैं ब्रश लेके ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ज़्यादा उठा लेता है वो प्रोडक्ट, इसलिए आज मैं सब कुछ ब्रश के साथ ही कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग दैट फुल कवरेज। दैट्स हाउ इट कवर्स माई पिगमेंटेशन मार्क्स एंड आई थिंक ओके, लाइक मीडियम बेज काम कर रहा है। नाउ द लाइटेस्ट शेड विच इज़ लाइट बेज, वो हाईलाइटिंग इफेक्ट के लिए लगा के आपको एप्लीकेशन डेमो दिखाती हूँ, एंड देन मैं मेकअप पूरा करके फिर मैं वापस आपसे मिलूँगी। Okay, whenever you use this concealer, use it just this much. I can't do it with brush, guys. I need my beauty blender. Let me take it and come back. Okay, I got my beauty blender. ये ELF का ही concealer sponge है, I guess. So let me first blend it properly. गाइस, जब तक कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेने गई ये पूरा सेट हो चुका है एंड इट्स नॉट एट ऑल ब्लेंडिंग। मुझे पता था कि ये कंसीलर सेट होता है, फिर भी मैंने ऐसे किया, बट वो ब्रश से भी ब्लेंड नहीं हो रहा था ना एक्चुअली। ये मुझे अच्छे से हटाना पड़ेगा। इस साइड को छोड़ दो, ये साइड आप देखो कि लाइट बेज कैसे हाईलाइटिंग इफेक्ट दे रहा है, काफ़ी अच्छा हाईलाइटिंग इफेक्ट दे रहा है, बट मुझे ब्लेंडिंग में काफ़ी इशू लगता है इस कंसीलर को लेके। तो अगर आप ऐसे हो ना जो क्विक एब्जॉर्बिंग, क्विक ब्लेंडेबल कंसीलर वाले कैटेगरी में आते हो मेरे जैसे, तो आप थोड़ा सा इसके साथ स्ट्रगल करोगे, बिकॉज दैट्स वाई मे बी आई एम नॉट लाइकिंग दीज कंसीलर्स। सो मैं अभी ये सारा डिज़ाइन हटा देती हूँ, अच्छे से मैं टैन सैंड लगाऊंगी, लाइट बेज लगाऊंगी, थोड़ा सा फाउंडेशन लगाऊंगी और आपके सामने आती हूँ अभी। Hey guys, I'm back with the makeup and somehow I feel my base is too dry. I don't know why. When I use these concealers to cover even my acne spots, I was feeling like it was not blending and all. So I actually well moisturize my face before every makeup that I do, and it's the same procedure I have maintained, but still ये concealers मुझे थोड़े से ड्राइंग लग रहे हैं, बहुत ही मैट है, लाइक अल्ट्रा मैट। तो जिनको वो पसंद है ना, परफेक्ट मैट फिनिश, वो ये कंसीलर्स ले सकते हैं। सो इन माय ओपिनियन पर्सनली ये जो एल्फ के कंसीलर्स हैं ना, वो येलोनेस थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, या फिर ऑरेंजीनेस जो होना चाहिए ना, जो हमें सूट करता है, वो थोड़ा सा कम है। वेयर टाइम 16 आवर्स का है। वेल मैंने इनको जब यूज़ किया था, वैसे तो इनका कोई शेड मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था, बट स्टिल टैन सैंड जब मैंने लगाया था और मैं बाहर गई थी, तो मुझे लगा कि इनका स्टेइंग पावर काफ़ी अच्छा है। लाइक इट डजंट बज, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आप लगाते वक्त ही आपने देखा था कि ये एकदम सेट हो गया था और मूव नहीं हो रहा था। तो एक बार अगर आप इसको अच्छे से पाउडर से सेट कर लो तो ये 16 आवर्स तक तो मुझे नहीं लगता हिलने वाला है। वैसे मैं बाहर थी 4 से 5 घंटे और मुझे लगा कि ये बिल्कुल बज नहीं हो रहा था। सो इट्स वेरी लॉन्ग वेयर। एंड रिगार्डिंग लाइक ऑक्सीडाइजेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन्होंने खुद कहा है कि इट ड्राइज टू डार्कर शेड। तो ये अगर आप फ्रेश स्वॉच करोगे और थोड़ी देर बाद देखोगे तो काफ़ी चेंज हो चुका होता है। सो इट इज़ रिकमेंडेड टू चूज अकॉर्डिंग टू द बॉक्स कलर और द स्वॉचेस, लाइक वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी इफ इट गोज विथ योर complexion or not. Overall, what I feel about this concealers is I can skip it totally. ये जो 7 शेड्स मैंने देखे उनको देखने के बाद का मेरा ये ओपिनियन है। आपको अगर ये कंसीलर्स पसंद है तो प्लीज़ गो अहेड एंड टेक इट। वैसे हाइड्रेटिंग कंसीलर्स भी मैंने लिए हैं इनके, तो उनका भी रिव्यू जल्दी करूँगी। सो या गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दीज कंसीलर्स एंड आई थिंक आई कैन से टाटा बाय बाय टू दीज कंसीलर्स एंड टू यू guys also. I will see you in my next video. Till that time, take care of yourself. Bye bye.